Hello students, very welcome to all of you. So now today in trigonometry 2 we are going to move ahead, and now we are going to do today trigonometric functions of angles of a triangle. Okay, so now today we have to learn some more new formulas. So let us begin. First of all, please write down this heading: trigonometric functions of angles of a triangle. Now we know that students start writing in any triangle ABC. We know that sum of all the angles of a triangle measures 180 degree. Write down in any triangle ABC. We know that A plus B plus C is equal to pi radian और 180 degrees भी लिख सकते हैं. That on this step. Now the first formula that we have to remember is write down sine of A plus B is nothing but equal to sine of angle C. Second formula that we have to remember, sine of B plus C is equal to sine of angle A. And the third formula that we have to remember is nothing but sine of C plus A is nothing but equal to sine of angle B. So these are the first three formulas that we have to remember. अब उसका derivation की जरूरत नहीं है हमें, but still for your reference I will explain you कि why sine of A plus B is equal to sin C. पहले हम formulas लिख लेते हैं, then I'll explain it to you. ये तीन formulas हो गए. Next, fourth one you write down cos of A plus B is equal to minus cos C. Fifth one, cos of B plus C is equal to minus cos A. And sixth and the last one for this is nothing but students, cos of C plus A is nothing but equal to minus cos B. Chalo. Write down these six formulas first of all. Now let me explain one or two of them. अब देखो sin of A plus B sin C कैसे हो गया ये explain करता हूँ, and cos of A plus B minus cos C कैसे हो गया, that I'll explain it to you. Just pay attention. Now you observe students, sin of A plus B. Now in any triangle ABC, we know that A plus B plus C is equal to pi. Sum of all the angles of a triangle measures 180. So sine function remaining same, A plus B, see from here, A plus B will be pi minus C. ठीक है, ये C वहां पे शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड पे. Now recollect sine of pi minus theta by the allied angle formula. Sine of pi minus theta sin theta होता है, so sine of pi minus C will be nothing but equal to sin C. So that is the reason why sine of A plus B is equal to sin C होता है. तो बाकी के formulas भी वैसे आपको मिल जाएंगे. Now see this one, cos of A plus B. Now A plus B. Now cos function will remain same. A plus B will be written as pi minus C. According to the allied angle formula, cos of pi minus theta minus cos theta होता है. So cos of pi minus C will be minus cos C. That is why we get all these formulas. Okay. Please note down. Now how you have to remember, एक सिंपल ट्रिक है इसको याद रखने के लिए. इफ इट इज साइन फंक्शन A प्लस बी रहेगा तो यहाँ पे एंगल C आएगा. साइन ऑफ A प्लस बी इज इक्वल टू साइन C. साइन ऑफ B प्लस C
इज इक्वल टू साइन ऑफ ए, यहाँ पे बी प्लस सी है, यहाँ पे ए आएगा, साइन ऑफ सी प्लस ए, दिस विल बी नथिंग बट इक्वल टू साइन ऑफ एंगल बी। ए प्लस बी है तो एंगल सी आएगा, बी प्लस सी है तो एंगल ए आएगा, सी प्लस ए है तो एंगल बी आएगा, एंड साइन फंक्शन है तो इट विल बी साइन फंक्शन। कॉस फंक्शन में भी ऐसे ही होता है, बट ओनली देयर इज अ नेगेटिव साइन। cos of a plus b is minus cos c, cos of b plus c is minus cos a, and cos of c plus a is minus cos b होता है। So that is how you can very easily remember the formulas. Please note down these 6, then we'll move on to the next ones. So now next one, अभी आप लिखो, now a by 2 plus b by 2 plus c by 2 is equal to pi by 2. इस एक्सप्रेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। We know that a plus b plus c is pi. So when we divide by 2, we get this. अब इससे नए फॉर्मूलेज जनरेट होने वाले हैं, ठीक है। तो राइट डाउन फॉर दिस द फर्स्ट वन, राइट डाउन साइन ऑफ a plus b by 2 is equal to cos of c by 2. पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कैसे याद रखना है। साइन ऑफ a प्लस बी बाई 2 है, ठीक है, तो साइन फंक्शन कॉस फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंस इट इज a प्लस बी बाई 2, यहाँ पे थर्ड एंगल आएगा c बाई 2, ठीक है। डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन कि वो कैसे आया, बट इन एग्जाम यू हैव टू राइट डाउन डायरेक्टली। वो कैसे आया की जरूरत नहीं है, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी। ये लिख लो, फर्स्ट वन हो गया। सेकेंड वन, राइट डाउन साइन ऑफ b प्लस सी बाई 2। तो देखो क्या होगा, साइन फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस फंक्शन में। हियर इट इज b प्लस सी बाई 2, तो राइट हैंड साइड में आएगा a बाई 2। जो एंगल यहाँ पे नहीं है वो वहां पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन इज साइन ऑफ c प्लस a बाई 2। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, साइन चेंजेस टू कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ एंगल b बाई 2 हो जाएगा। राइट डाउन दीज थ्री। सेम इज एप्लीकेबल फॉर कॉस, कॉस होगा तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड हो गया, फोर्थ वन देखो, फोर्थ फॉर्मूला कॉस ऑफ a प्लस b बाई 2। So this will be nothing but equal to sine of c by 2. Next, fifth one, cos of b plus c by 2. This will be nothing but equal to sine of a by 2. Okay, and the last one and the sixth formula that we have to remember, that is cos of c plus a by 2. So cos of c plus a by 2 is nothing but equal to sine of b by 2. चलो write down this. अब ये फॉर्मूलेस कैसे आए, तो इसमें से चलो अब ये दो एक्सप्लेन कर देता हूँ। y sin of b plus c by 2 is equal to cos of a by 2 कैसे हो गया वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फिर द सेकेंड वन, नाउ साइन ऑफ यहाँ पे क्या है, b plus c by 2, ठीक है, जस्ट पे अटेंशन। नाउ साइन फंक्शन रिमेनिंग सेम। अब यहाँ से देखो आप, b plus c by 2 will be equal to what, so it will be nothing but equal to pi by 2 minus a by 2 हो जाएगा। So this a by 2 will be shifted on the right hand side. b plus c by 2 will be nothing but pi by 2 minus a by 2, ये आएगा। Now according to the allied angle formula, sin pi by 2 minus theta क्या होता है, cos theta होता है। So this is going to become nothing but cos of a by 2 हो जाएगा। देखो, so sin of b plus c by 2 is nothing but equal to cos of a by 2 आ गया। अब ये देख लेते हैं,
Similarly, see this one, कौन सा है fifth, cos of b plus c by 2. ठीक है, तो दिस इज फर्दर इक्वल टू cos फंक्शन रिमेनिंग सेम, b plus c by 2 is nothing but what, pi by 2 minus a by 2. cos pi by 2 minus theta, cos pi by 2 minus theta sin theta होता है, तो cos pi by 2 minus theta is sin theta, तो ये हो जाएगा sin of a by 2. Now since it is first quadrant, everything is, all the functions are positive, इसलिए ये सब positive है. ठीक है, please note down. तो टोटल कितने फॉर्मूलेज है स्टूडेंट्स, 6 in this and 6 in this, तो टोटल 12 फॉर्मूलेज वी हैव टू रिमेंबर. और उसका हेडिंग ऐसा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, दे आर ऑल ट्रायंगल रिलेटेड फॉर्मूलेज. तो इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट वी हैव टू डू, एक्सरसाइज नंबर 3.5 जो करना है, उसमें ये सारे फॉर्मूलेज काम आने वाले हैं, along with the previous one, sin to theta, cos to theta, cos square theta, 1 plus cos to theta, जो प्रीवियस फॉर्मूलेज यूज किए हैं वो तो लगने ही वाले हैं, उसके साथ ये फॉर्मूलेज भी हमें 3.5 में लगने वाले हैं. ओके, चलो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. ये तो सिर्फ मैंने आपके एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा था, इसको लिखने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट नोट डाउन दीज फॉर्मूलेज एंड देन वी विल मूव ऑन टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग. Okay students, now let's move on to exercise number 3.5. क्वेश्चन का देखो हेडिंग कैसे दिया है, इन ट्रायंगल ABC a plus b plus c is equal to pi given, then we have to prove the following. So we will consider the left hand side and obtain the right hand side. ठीक है, चलिए लिखिए solution for the problem. Let us consider the left hand side. अब लिखो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, cos 2a plus cos 2b plus cos 2c. This is given. Now first of all students, आप क्या करो, इसके लिए प्रेफरेबली आप ब्रैकेट डाल लो 2a 2b और 2c के लिए. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, we will be applying the formula for cos c plus cos d. अभी फर्स्ट एग्जांपल है तो मैं स्टेप वाइज जा रहा हूँ. ठीक है, अभी आप रिकलेक्ट करो स्टूडेंट्स, cos c plus cos d का क्या फॉर्मूला है. चलो आई विल राइट डाउन ओवर हियर फॉर योर रेफरेंस. cos c plus cos d is nothing but equal to 2 cos of c plus d by 2 into cos of c minus d by 2 होता है. रिकरेक्ट, वी हैव लर्नड फैक्टराइजेशन एंड डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूलेज. तो जो भी प्रीवियस टॉपिक्स में सब पार्ट्स में हमने फॉर्मूले सीखे हैं वो तो हमें आने ही चाहिए, दे आर मस्ट. ओके, so this formula will be applied over here. Right, and what will this become? This will be further equal to 2 cos of c plus d, so 2a plus 2b whole upon 2 into cos of 2a minus 2b whole upon 2. ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया, प्लस cos 2c ये एज इट इज रहेगा. ठीक है, चलो राइट डाउन दिस स्टेप एंड इफ यू वांट यू राइट डाउन द फॉर्मूला. ये फॉर्मूला एग्जाम में लिखना कंपलसरी नहीं है, आपके रेफरेंस के लिए लिखा है मैंने वहां पे. ठीक है, तो फॉर्मूला मैं रब कर देता हूं. नाउ व्हाट विल डू, इस ब्रैकेट को हम सिंप्लीफाई करेंगे. रिटर्न व्हाट विल बी दिस, रिटर्न एज 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे जो 2 कॉमन आएगा वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. तो व्हाट विल बी लेफ्ट आउट विथ cos ऑफ a प्लस b इंटू cos ऑफ a माइनस b रिमेन्स, plus cos 2c will also remain same. Now see the triangle related formulas. Now according to the triangle related formulas, जितने भी प्लस वाले टर्म्स है, ये देखो cos of
a plus b. Now this cos of a plus b is going to become nothing but minus cos c. तो लिखो क्या होगा, this 2 will remain same, cos of a plus b, so that will be written as minus cos c into cos of a minus b remaining same, and this cos 2c. So cos 2c will be written as nothing but 2 cos square c minus 1 लिखेंगे हम इसको. Now obviously there is a reason behind it. सबसे पहले तो cos of a plus b minus cos c हो गया. This becomes this. So you write down that as a reason. ऐसा लिख लो आपके रेफरेंस के लिए. Since cos of a plus b is equal to minus cos c. नोटबुक में देखो मैंने आपको फॉर्मूलेज लिख के दिए हैं जो ट्रायंगल रिलेटेड है. नाउ cos 2c को 2 cos square c minus 1 क्यों लिखा, तो फॉर्मूला है. कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया स्टूडेंट हमने, तो वी हैव अप्लाइड cos 2 थीटा का फॉर्मूला. तो cos 2 थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू 2 cos square थीटा minus 1 होता है. तो ये दो फॉर्मूलेज, ये फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई किया, वी हैव गॉट दिस. cos 2 थीटा का फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई किया, वी हैव गॉट दिस. ठीक है, चलो राइट डाउन दिस स्टेप. नाउ ऑब्वियस क्वेश्चन विल कम टू योर माइंड कि सर आपको कैसे मालूम पड़ गया कि यहाँ पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो ऑब्जर्वेशन देखो, राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, वी वांट -1 ना. तो अगर cos 2 थीटा का ये वाला फॉर्मूला हम नहीं अप्लाई करेंगे तो हमें -1 नहीं मिलेगा. और यहाँ पे देखो एक टर्म दिख रहा है cos c, तो यहाँ पे देखो ये cos c है. तो बाय प्रैक्टिस, बाय ऑब्जर्वेशन, यू विल अंडरस्टैंड एट व्हाट टाइम विच फॉर्मूला शुड बी अप्लाइड. बट उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि फॉर्मूलेज मालूम होने चाहिए. ठीक है ना, चलो राइट डाउन दिस स्टेप. अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं. व्हाट विल दिस बिकम, तो दिस विल बिकम नथिंग बट, ये हो जाएगा -2 times of cos c into cos of a minus b plus 2 cos square c and -1. इसको एज इट इज रखो, कुछ नहीं किया, ये माइनस साइन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आगे लिख दिया. नाउ व्हाट विल डू, फ्रॉम दीज टू टर्म्स, ये दोनों टर्म्स में से हम 2 cos c कॉमन निकाल सकते हैं. तो चलो राइट डाउन. नेक्स्ट स्टेप we will take, in fact we can take -2 cos c common from these two terms. Write down -2 cos c कॉमन निकाल लिया ये दोनों टर्म्स में से. तो -2 cos c कॉमन आ गया, तो ये टर्म में से क्या बचेगा, cos of a minus b. This positive term is going to become negative. तो ये क्या हो जाएगा, -2 cos c बाहर आ गया. तो ब्रैकेट के अंदर स्टूडेंट्स दिस विल बी लेफ्ट आउट विद cos c, क्लोज द ब्रैकेट एंड -1 विल रिमेन सेम. देखो -1 तो हमें हमारा मिल चुका है ऑलरेडी, चाहिए तो आप वो -1 स्टार्टिंग में लिख सकते हो. यू कैन रीअरेंज एंड राइट डाउन, बट ठीक है, डजंट मैटर. -1 को हम बाद में रीअरेंज कर लेंगे. तो फ्रॉम दीज टू टर्म्स वी हैव टेकन -2 cos c कॉमन. अब देखो फॉर्मूला, माइनस cos c इज cos ऑफ a प्लस b ना. तो इसको हम यहाँ पे रिप्लेस करने वाले हैं. तो दिस इज फर्दर इक्वल टू -2 cos c रिमेनिंग सेम. ये cos ऑफ a माइनस b सेम रहेगा. -cos c विल बी रिटर्न एज प्लस टाइम्स ऑफ cos ऑफ a प्लस b. क्लोज द ब्रैकेट, -1 रिमेनिंग सेम. देखो ये जो -cos c है, मैं मार्क कर रहा हूँ आपके रेफरेंस के लिए. ये जो -cos c है ये cos ऑफ a प्लस b बन गया. वहाँ पे देखो फॉर्मूला, -cos c इज नथिंग बट cos ऑफ a प्लस b. cos of a plus b is equal to -cos c. Formulas are applicable both the ways, you know that. ठीक है, चलिए लिखिए इसको आप. प्रॉब्लम इज ऑलमोस्ट गेटिंग ओवर. अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा आपके रेफरेंस के लिए रीअरेंज कर देता हूँ. तो राइट डाउन नेक्स्ट स्टेप, सेकंड लास्ट स्टेप, -2 cos c रिमेनिंग सेम. नाउ इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो दिस विल बी रिटर्न एज cos ऑफ a प्लस b
plus cos of a minus b. Close the bracket, -1 remaining same. So this will be further equal to, चलो यहीं पे नीचे कंटिन्यू कर देता हूँ. This is further equal to -2 cos c as it is रहेगा. ठीक है. Cos of a plus b plus cos of a minus b. Defactorization formula. ये किसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स? तो दिस इटसेल्फ इज फॉर्मूला फॉर 2 cos a cos b. क्लोज द ब्रैकेट, -1 रिमेनिंग सेम. देखो डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला, आप नोटबुक ओपन करो और उसमें देख लो. cos of a plus b plus cos of a minus b. This is the formula for 2 cos a cos b. ठीक है. Now what will happen? इसको मल्टीप्लाई कर दो. Sorry down. This is further equal to. इसका स्टेप ये इक्वल टू आप सामने डालो इसके. So this is further equal to. What will happen? -2. तो एज इट इज है, ये 2 इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो व्हाट विल दिस बिकम? चलो आई कैन राइट डाउन ओवर देयर आल्सो. इसको ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. आई विल जस्ट बाइफरकेट दिस एंड आई विल राइट डाउन ओवर हियर, ताकि कंफ्यूजन ना हो. तो ये स्टेप के बाद आई एम जस्ट पुटिंग दैट इक्वल टू ओवर हियर. इसके बाद वहां पे लिखो आप. तो माइनस साइन रिमेनिंग सेम. ठीक है. 2 2s are 4 and rest everything is in multiplication. तो ये क्या है? cos c into cos a into cos b and -1 will remain same. देखो रीअरेंज करके लिखा. Now see this itself is nothing but our right hand side. चाहिए तो रीअरेंज कर लो. -1 पहले लिख लो. -4 times of, you rearrange as he has written. So that is cos a into cos b into cos c, and this itself is nothing but our RHS. Problem is over. ठीक है. So simple है but important है. ठीक है. At the same time, if this question is asked in exam, this will carry 3 to 4 marks in exam. And let me tell you, ये same procedure, this kind of procedure is also to be used in 12th standard trigonometry. Okay, so please make a note of this. Problem is over. Let us move on to question number 2 today. LHS equal to RHS prove करना है. First of all, note down the question. चलो solution क्या करेंगे? Obviously, let us first consider the left hand side. तो लिखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है स्टूडेंट्स? sin a plus sin b plus sin c. ठीक है. Now on the first two terms we will apply sin c plus sin d का formula. So what is sin c plus sin d का formula? 2 sin c plus d by 2 means a plus b by 2 into cos of a minus b by 2 हो जाएगा. sin c minus sin c plus sin d का फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, प्लस this sin c is going to remain the same. अब हम क्या करेंगे? this sin of a plus b by 2 ये कन्वर्ट हो जाएगा बाय द ट्रायंगल रिलेटेड फॉर्मूले. देखो जहां पे भी माइनस साइन होता है उसको आप चेंज नहीं कर सकते. इट इज गोइंग टू रिमेन सेम. So what will happen? 2, this will become cos of c by 2 into cos of a minus b by 2 will remain same. देखो ट्रायंगल रिलेटेड फॉर्मूला से ये जो साइन ऑफ a प्लस b बाई 2 है वो cos c by 2 बन गया. एंड एट द सेम टाइम दिस sin c will be written as 2 sin c by 2 into cos c by 2. कैसे? तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है. देखो sin of a plus b by 2 by the triangle related formula ये बन जाता है cos of c by 2.
नोटबुक में भी देखो, मैंने आपको लिख के दिया है ऑलरेडी, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया है। साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट्स? तो इट इज साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होता है। तो ये वाला फॉर्मूला हमने इसके ऊपर अप्लाई किया। तो रिस्पेक्टिवली जब हमने ये फॉर्मूलेज अप्लाई किए तो चेक वी हैव गॉट दिस स्टेप, ठीक है। चलो राइट डाउन टिल हियर, देन विल मूव अहेड। नाउ व्हाट विल डू इन द नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, ये दोनों टर्म्स में से वी विल बी टेकिंग 2 cos c by 2 कॉमन आ जाएगा। राइट डाउन नेक्स्ट स्टेप, 2 cos c by 2 will be taken common। तो यहाँ से 2 cos c by 2 बाहर गया, तो what will be left out? cos of a minus b whole upon 2 बचेगा, ठीक है। प्लस यहाँ से भी 2 cos c by 2 बाहर गया, तो फ्रॉम हियर we will be left out with sin c by 2, close the bracket। चलो नेक्स्ट स्टेप, what will happen? 2 cos c by 2 remaining same, ये cos of a minus b by 2 also remaining same। अब ये जो sin c by 2 है ना, तो this sin c by 2 will be written as cos of a plus b by 2, close the bracket। By the triangle related formula, sin c by 2 becomes cos of a plus b by 2। फॉर्मूला ऐसा है, cos of a plus b by 2 sin c by 2 होता है, तो ऑब्वियसली sin c by 2 को हम cos of a plus b by 2 लिख सकते हैं। देखो मैं मार्क कर रहा हूँ आपके रेफरेंस के लिए, जो जो चेंज हो रहा है ना वो मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो बाई 2 है ना, इसको आप स्प्लिट कर दो ब्रैकेट के अंदर। नेक्स्ट स्टेप, राइट डाउन, दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 cos c by 2 एज इट इज रहेगा, दिस विल बी रिटर्न एज cos of a by 2 minus b by 2 plus cos of a by 2 plus b by 2, ठीक है। राइट डाउन, और इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। लेट अस रीअरेंज दिस, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लो, उसके बाद आगे का स्टेप मैं यहाँ पे लिखूंगा। ये रीजन है, ये तो फॉर्मूले थे, तो ये मैं हटा देता हूँ, कब कर देता हूँ राइट डाउन टिल हियर, उसके बाद मैं वहां पे लिखूंगा स्टेप। So now what will happen? This is further equal to 2 cos c by 2 as it is रहेगा, and let us rearrange this bracket। तो ये टर्म पहले लिख देते हैं हम, I'll tell you why। cos of a by 2 plus b by 2 plus cos of a by 2 minus b by 2 and then close the bracket। अब देखो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स 2 cos a cos b। तो 2 cos a cos b का क्या फॉर्मूला है? तो इट इज नथिंग बट इक्वल टू cos of a plus b plus cos of a minus b। दिस इज द फॉर्मूला। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, cos of a plus b plus cos of a minus b इज नथिंग बट 2 cos a cos b। तो देखो इसको, ये जो अपना ब्रैकेट है ना, इसको आप इससे कंपेयर करो, दिस स्क्वायर ब्रैकेट यू कंपेयर विद दिस, ऑब्वियसली ये फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई होगा। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पे a के जगह पे a by 2 है और यहाँ पे b के जगह पे b by 2 है। तो ऑब्वियसली तो यहाँ पे भी a के जगह पे a by 2 हो जाएगा और b के जगह पे b by 2 हो जाएगा। तो रीड ऑन, व्हाट विल दिस बिकम? 2 cos c by 2 रिमेनिंग सेम, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इट विल बिकम 2 cos of a by 2 into cos of b by 2 बन जाएगा, क्लोज द ब्रैकेट। रीजन, ये फॉर्मूला आप लिख लो साइड में, या ऑन द नेक्स्ट लाइन यू राइट डाउन दिस फॉर्मूला। तो यहाँ से ये स्टेप कैसे आया? तो इट इज बाय दिस फॉर्मूला, नोट डाउन। प्रॉब्लम खत्म हो चुका है, देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा एंड वी हैव गॉट द आंसर।
तो इसको रीअरेंज कर लो, 2 into 2 is 4 एंड मल्टीप्लीकेशन में इसको रीअरेंज करके लिख दो आप, इट इज cos of a by 2 into cos of b by 2 into cos of c by 2 and this itself is nothing but our RHS. Problem is over. लिख लो। ये फॉर्मूला मैं हटा देता हूँ, इसको तो हमने यूज किया है, तो प्रॉब्लम एंड्स ओवर हियर। RHS मिल गया अपने को, so we have proved that the left hand side is equal to the right hand side. Note down, then we'll move on to the next example. Okay students, now let's move on to the third question. LHS is equal to RHS prove करना है, but obvious. तो लिखिए solution, consider left hand side. What is the left hand side? Cos A plus cos B minus cos C. RHS लाना है. Now cos C plus cos D का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे on the first two terms. What will that give us? 2 cos A plus B by 2 into cos of A minus B by 2. चाहिए तो ये माइनस कॉस सी आप एज इट इज रख दो, या हम ऐसा भी कर सकते हैं दिस माइनस कॉस सी, क्योंकि हमने दो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी कर चुके हैं. नाउ दिस कॉस सी, लेट अस राइट डाउन दिस एज 1 minus 2 sin square c by 2. ऐसा लिख लो आप इसको. कैसे फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला यूज किया स्टूडेंट्स? cos थीटा इज इक्वल टू 1 minus 2 sin square theta by 2 होता है. दिस फॉर्मूला इज अप्लाइड ओवर हियर. cos c से ये फॉर्मूला आया अपने को, दिस स्टेप. नाउ ऑब्वियस क्वेश्चन कि सर आपको कैसे मालूम पड़ा cos थीटा का यही है? cos थीटा का तो दूसरा भी फॉर्मूला है, 2 cos square theta minus 1. तो 2 cos square theta minus 1 क्यों नहीं यूज किया? See, because before the bracket there is a minus sign. 2 cos square theta minus 1 वाला फॉर्मूला यूज करते तो ये -1 और वो -1 +1 हो जाता. अब राइट हैंड साइड में हमें -1 चाहिए. ऑब्जर्वेशन, राइट हैंड साइड पे -1 चाहिए, एंड सी हियर इट इज अ साइन फंक्शन, sin c/2 रिक्वायर्ड है. जो फर्स्ट प्रॉब्लम था उसमें कॉस फंक्शन चाहिए था, इसमें देखो रिक्वायरमेंट sin c/2 है, तो इसलिए यहाँ पे भी sin c/2 है और आगे चल के यहाँ पे भी ये sin c/2 हो जाएगा. इसलिए cos थीटा का ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे हमने यूज किया है. तो चलो रेड ऑन नेक्स्ट स्टेप में 2 this will become nothing but sin c/2 according to the triangle related formula. ये वाला जो टर्म है ये sin c/2 बन जाएगा. Rest everything let us keep it same. ये ब्रैकेट माइनस साइन से ओपन कर दो आप. So what will this become? This will be written as, थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं, माइनस ऑफ माइनस, तो ये ऐसा हो जाएगा, ये वाला टर्म पहले लिख देंगे. तो दिस विल बी रिटर्न एज प्लस 2 sin square c/2 एंड -1 को बाद में लिख देंगे. ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पहले -1 और फिर ये प्लस वाला, तो रीअरेंज करना नहीं पड़े इसीलिए हमने डायरेक्ट यहाँ से ये स्टेप लिख दिया, इतना अलाउड है. Now observe from both these terms 2 sin c/2 कॉमन आ जाएगा. तो लिखो नेक्स्ट स्टेप 2 sin c/2 will be taken common. तो 2 sin c/2 गया तो यहाँ से क्या बचेगा? We will be left out with cos of a minus b by 2. यहाँ से 2 sin c/2 कॉमन आएगा तो यहाँ से sin c/2 बचेगा. Close the bracket. This -1 remaining same as it is. Write down next step. 2 sin c/2 ये as it is रहेगा. Cos of a minus b by 2 remaining same. अब ये जो sin c/2 है ना स्टूडेंट्स, this sin c/2 will become nothing but cos of a plus b by 2 बन जाएगा.
फॉर्मूला है कौन सा, ट्राइंगल रिलेटेड, चेक नोटबुक में देखो। अभी तो यहाँ पे लिखा है क्या है, cos of a plus b by 2 sin c by 2 है, तो ऑब्वियसली sin c by 2 कैन बी रिटन एज cos of a plus b by 2, रेस्ट एवरीथिंग सेम। अब क्या करेंगे, बाई टू स्प्लिट कर दो आप, तो दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 sin c by 2 as it is, this is going to become cos of a by 2 minus b by 2 plus cos of a by 2 plus b by 2, close the bracket, minus 1 remaining as it is. So what will happen next, 2 sin c by 2 remaining same. अब ये जो ब्रैकेट है ये खुद एक फॉर्मूला है, दिस होल ब्रैकेट इटसेल्फ इज अ फॉर्मूला। अभी प्रीवियस एग्जांपल में मैंने आपको अप्लाई करके बताया, cos of a plus b plus cos of a minus b is the formula for 2 cos a cos b, तो उसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 2 cos of a by 2 into cos of b by 2 हो जाएगा, क्लोज द ब्रैकेट, minus 1 remaining same। हो गया, देखो आगे आ रहे, 2 2 जा 4, cos a by 2 cos b by 2 sin c by 2 minus 1 remaining same। तो चलो लिखो, लास्ट स्टेप लिख देता हूँ यहीं पे नीचे, 2 2 जा 4 हो गया, फिर उसके बाद a वाला एंगल लिखते हैं, तो cos of a by 2 into cos of b by 2 into sin of c by 2 minus 1 as it is, and this itself is nothing but our RHS। Problem is over। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, राइट हैंड साइड मिल गया, प्रॉब्लम इज ओवर। ठीक है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। So remaining questions of the exercise we will continue next time। लिख लो यहाँ तक, then we'll stop। So we stop for today। So please keep studying and please watch my YouTube channel। Thank you very much।